हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 4 क्लास 8th ए विजिट टू कैम्ब्रिज। बच्चों, आज मैं आपको लेसन 4 ए विजिट टू कैम्ब्रिज के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहा हूँ। वर्ड पावर। Choose the words from the box which can be substituted for the given sentences। दिए गए सेंटेंस के लिए उनका सब्स्टिट्यूट भरना है। कई शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे डीप, इलिटरेट, ब्लाइंड, डंप, लेम। नंबर ए, वन हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकता है, इज कॉल्ड ब्लाइंड, अंधा। वन हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता है, डीफ, DEAF। वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता है, डम्प, DUMP। वन हु कैन नॉट वॉक, जो चल नहीं सकता है, LAME, लेम। वन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो लिख नहीं सकता है और पढ़ नहीं सकता है, इज कॉल्ड इलिटरेट, ILLITERATE, इलिटरेट। Look at the following words: walk, stick. Can you create a meaningful phrase using both these words? फ्रेज का प्रयोग करना है। It is simple. Add ing to the verb and use it before the noun. Put an article at the beginning. For example, a walking stick. Now make 6 such phrases using the words given in the box. A reading session, a smiling face, a revolving chair, a walking tour, a dancing doll, a winning chance। इस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है। लैंग्वेज प्रैक्टिस। नंबर 1, यूज नाइदर नॉर। आइदर और नाइदर नॉर कंजक्शन है। टू ज्वाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेज given below. One has been done for you. I don't eat candy. I don't eat cake. These two sentences we should add neither nor. So present and definite का नेगेटिव सेंटेंस है दोनों, तो neither do I eat candy nor cake. Number B, I don't like John. I don't like Peter. So neither do I like John nor Peter. neither nor से इनको जोड़ना है। नेक्स्ट है he did not come, he did not call। ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो neither अब हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, तो neither did he come nor call। he does not drink, he does not smoke। प्रेजेंट इंडेफिनिट में neither does he drink nor smoke। she did not like Rome, the name of city। she did not like Paris। पास्ट इंडेफिनिट में तो neither did she like Rome nor Paris। नंबर 2, यूज all or both in the blanks। Tell your partner why you chose one or the other। all भरना है या both। नंबर 1, he has 2 brothers, both are lawyers। More than 10 persons called, all of them wanted to see you। They
all cheered the team. Number 4. Both her parents are teachers. Number 5. How much have you got? Give me all of it. So write in your copy. Use of let's and let's apostrophe s. Let's without an apostrophe is the singular form of the verb let's. मीनिंग इसका दिया है टू अलाउ मीन्स अनुमति देना और परमिट. एग्जाम्पल सी लेट्स द डॉग आउट एवरी मॉर्निंग. लेट्स मीन्स with an apostrophe is a short form of let us. Let's means let us, which is used for suggestions or request. It is similar to the meaning of we should. Example, let us learn more. Now complete the following sentences using let's or let us. Number A. His mother lets him watch TV till midnight. Number B. Let us hope for the best. Number C. Let us see what is on the menu. Number D. The teacher lets the children play. He lets his dog to go out. Number last, let us go fishing. So write in your school copy. These all exercise. Question answer. Number 1. Name the book written by Stephen Hawking. Answer. उस पुस्तक का नाम लिखिए जिसको स्टीफन हॉकिंस ने लिखा. द बुक रिटन बाय स्टीफन हॉकिंस इज ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. सो रीड एंड लर्न. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट मेक्स द डिफरेंटली एबल्ड people stronger according to the author? Answer. According to the author, the thing that makes differently abled people stronger is seeing somebody like them achieving something huge. जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं उन्हें कौन सी चीज़ अच्छी लगती है और जो उन्हें मजबूत बनाती है लेखक के अनुसार. तो जब वे किसी व्यक्ति को अपने जैसे डिसेबल्ड पीपल को कुछ अधिक उपलब्धि प्राप्त करते देखते हैं तो उन्हें अधिक मजबूत बनाती है. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड? वैज्ञानिक का उन डिसेबल्ड पीपल के लिए क्या संदेश है? क्या कहते हैं वो? द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड इज दैट. वैज्ञानिक का उन अपंग लोगों के लिए संदेश है दैट दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट. उन डिसेबल्ड पीपल को उस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसमें वे अच्छे हैं, अन्य चीज़ में नहीं. क्वेश्चन नंबर 4. द राइटर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेट ग्रेटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग. लेखक स्टीफन हॉकिंग्स के प्रति अपनी महान कृतज्ञता व्यक्त करता है. व्हाट इज द ग्रेटिट्यूड फॉर? वह महान कृतज्ञता क्या है? तो द राइटर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेट ग्रेटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंस फॉर गिविंग हिम टाइम. लेखक
स्टीफन हॉकिंस के प्रति महान कृतज्ञता समय देने के लिए व्यक्त करता है। हिज बिजी रूटीन, जो उन्होंने अपने व्यस्त समय में से निकाल के दिया। एंड गिविंग द ऑथर इंस्पिरेशन, और लेखक को प्रेरणा देने के लिए महान कृतज्ञता व्यक्त करता है। टू हेल्प टू मेक हिज लाइफ बेटर, जिससे कि उस लेखक का जीवन अधिक अच्छा बन सका, इसके लिए वो कृतज्ञता ज्ञापित करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, राइट दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर कॉपी। थैंक यू।